السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، زندہ قومیں اپنی صحت مند روایات کو نہ صرف قائم رکھتی ہیں بلکہ ان میں اضافے کے لیے بھی کوشاں رہتی ہیں. لیکن پسماندہ اور نادار قومیں جو کرتی ہیں وہ اس کے برعکس ہوتا ہے. وہ اپنی ہر اچھی روایت کو ختم اور بری روایات کو رائج کرنے کی سر توڑ کوشش کرتی ہیں. آج اسی تناظر میں ہم کنزیومر کورٹس کی حالت زار بیان کریں گے. ہم نے دعوت دے رکھی ہے محسن بھٹی صاحب کو. آپ کنزیومر ایکٹیوسٹ ہیں اور میں سر ذاتی طور پر آپ کی کنٹریبیوشن سے بہت متاثر ہوں اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. جی بھٹی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کنزیومر کورٹس ہیں کیا، ان کے فیوز و برکات کیا ہیں، کیا کیا فضائل ہیں اور ہم ان کا حشر کیا کرتے چلے جا رہے ہیں. جی سر، ہر وہ شخص جو بازار سے کوئی چیز خریدتا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، وہ کنزیومر ہے، وہ صارف ہے. اور اگر وہ اس کے معیار سے مطمئن نہیں ہے، اس کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے یا اس کے استعمال سے اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو وہ ان صارف عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے. یہاں پہ کیس دائر کرنے کے لیے کوئی کورٹ فیس نہیں ہے. آپ سمپلی جائیں، اپنی کمپلینٹ لے کے جائیں اور آپ کا مسئلہ وہاں پہ حل ہوگا. وکیل کی ضرورت ہے؟ وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ لیگل نوٹس دیں، آپ خود ایک ڈرافٹ کریں لیٹر. ٹھیک، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ خود ایک لیٹر ڈرافٹ کریں. اگر آپ کو کسی وکیل کی اگر خدمات چاہیے ہیں بھی، تو اگر کیس آپ جیت جاتے ہیں، آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے، تو آپ کو وکیل کی فیس بھی عدالت سے دلوائی جائے گی. ہمارے اس وقت 70% کیسز کے فیصلے آؤٹ آف کورٹ صرف لیگل نوٹس پر ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ رجوع نہیں کرتے؟ ہمیں یہاں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. کورٹس بن گئی، پرویز لائی دور میں بن گئی، اور جو 11 ضلعوں میں وہاں پہ کورٹس تھیں، آج بھی ہم 11 ضلعوں میں ہی موجود ہیں. آج تک ہم نے 11 سے 12 ضلعوں میں نہیں گئے ہیں. وہی اشر خواتین حضرات جو ریسکیو 1122 کا، ریسکیو 1121 کا، اسی طرح ہی ایک بہت عمدہ منصوبہ پرویز لائی کا ٹریفک وارڈنز تھے. ان کی حالت زار بھی آپ سب کے سامنے ہے. اور اب رہی صحیح کسر کنزیومر کورٹس نے نکالا. یہاں پہ سر کوئی بھی اویئرنیس کے لیے سپورٹ ہے ہی نہیں. گھٹیا سے منصوبے، ان کے لیے کروڑوں روپے کا، اربوں روپے کا ایڈورٹیزمنٹ بجٹ ہے. اس کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا جاتا. ایون سٹاف کو تنخواہیں تک نہیں دی جا رہی. جن لوگوں نے عوام کو انصاف دینا ہے، 4 ماہ سے انہیں تنخواہیں نہیں ملی. جس محکمے کے سربراہ کے پاس اس کو سننے کا ٹائم نہیں ہے، 4-5 مہینوں سے ایڈیشنل چارج پہ اس کے سیکرٹری صاحب، کوئی اور محکمے کے سیکرٹری ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا. اور وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ شہباز شریف جیسا ذہین اور زیرک شخص اس سے نابلد ہے کہ اس پروجیکٹ کی کامیابی کا فائدہ پرویز لائی کو اتنا نہیں پہنچ سکتا جتنا اس کی ناکامی اور اس کو شیلف کرنے کا نقصان تمہیں پہنچ سکتا ہے. اگر آج اس وقت پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بڑا چرچا ہے، اس کی ڈائریکٹر کو باقاعدہ میڈل دیے جا رہے ہیں اور وہ اس قابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انہوں نے نو ڈاؤٹ کام کیا، لیکن وہ لاہور کی حد تک ہے. یہ وہ ادارہ ہے جو اس وقت پورے پنجاب میں عوام کو ریلیف دے رہا ہے، اور سب بڑی کمپنیوں کے فیصلے آ چکے ہیں، اور وہاں سے نہ صرف لوگوں کو پروڈکٹ ریپلیس کروائی جا رہی ہیں بلکہ ان کو وکیل کی فیس بھی دی جا رہی ہے، پلس ڈیمیجز بھی دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹروں کے خلاف ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر کو 22 کروڑ روپے کا اس کو جرمانے کی سزا ہوئی ہے. کنزیومر کو ریلیف دلوایا گیا کیونکہ اس نے باہر سے اپنی بچی کا علاج کروایا تھا. جی میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس بتانا چاہتا ہوں کنزیومر کورٹ کے حوالے سے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ میں نے لگایا تھا اور مجھے 2 نمبر واٹر فلٹریشن پلانٹ مل گیا. لیکن جب میں نے کنزیومر کورٹ کے ساتھ رابطہ کیا تو نہ صرف مجھے میری رقم ملی بلکہ اس کمپنی کو 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کنزیومر کورٹ کی کتنی بڑی افادیت ہے. آفتاب صاحب، میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے بکرے کہاں سے ملتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بھوک کیوں لگتی ہے؟ سر میری بات بیچ میں رہ گئی. سڑنا کر لو، اسی ویلے بیٹھے ہیں جی. یار یہ کون سے فضول لوگ بٹھائے ہوئے ہیں؟ یہ 2 فضول ہے، میں ایجوکیٹڈ ہوں. اچھا، اب آپ نے بات نہیں کرنی، انہیں کمپلیٹ کر لیں دے. چپ. جی
आखिर क्या वजह है कि कंज्यूमर कोर्ट को हुकूमत क्यों नहीं चलने देती? चाचा जी ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸੋ ਚੰਗੀ ਭਲੀ डिटेल ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ मैंने भी गुजारिश की है, भट्टी साहब भी यही बता रहे हैं, क्या हो गया? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, मैं तो जेब से नहीं कटे। ओ बात सुनो, बेचे भी खुद है तुमने, मेरी बात सुनो पहले जी। ये जनरेटर बेचा भी तुम्ही ने था? हाँ जी मैं बेचे। बेचा भी तुमने, फिर रिपेयर भी तुम कर रहे हो जी और अब कह रहे हो कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सर चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं है। चाइना का माल खरीदते क्यों हो तुम, क्यों देते हो लोगों को? सर एक मिनट ठहरो, तुम तो सारा दिन इतने ही हो, तुम होर काम ही कोई नहीं। मैं जरा भाई ने गल करके तुम अच्छा मेरी गल सुनो, अगर तुम कोई बड़ा मसला ना तो तुम इस तरह करो कि तुम ले लो जापानी, देखो ये 2.5 लाख का है, वो कोई एडी ज्यादा कीमत नहीं होती, 15 लाख का टोटल है। देखा ना, डरा रहे हो, ये डरा रहा है कंज्यूमर बेचारे को। चलो ठीक है फिर लाओ 50 एक मिनट कर यार ना तंग करो ना यार, मेहरबानी करो तुसी। चलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मुझे पहचानिए। बाजी ਤੁਹਾਡਾ मसला की है? क्या मसला होना है भैया? जनरेटर 20 दफा इससे ठीक करवाया मैंने, जब घर लेके जाते अगले दिन खराब हो जाता है। 2 बारी मैं ऐं करदा ते बंद। हमें कहता घर जाके जनरेटर चलाए ठीक होगा। जनरेटर की एक मिनट बात करो ना बच्चे। जब आपने पैसे लिए हमसे, आपने हमें उसकी गारंटी दी, उसके बाद वो गारंटी के मुताबिक वो चलता क्यों नहीं ठीक तरह से? मैंने आपको पहले भी ये बात की है, मैं 1000 मरतबा ये बकवास कर चुका हूँ। वो चाइना की माल की गारंटी नहीं है, मोटर की गारंटी थी, ठीक है? ये कंप्यूटर का फॉल्ट है, वो मुझे नहीं आता। देखा, अगर कंप्यूटर की गारंटी होती तो मोटर का फॉल्ट निकला। जल्दी कर ला पुत्र, अगर गाहक को छितर नहीं ना पैने, इस भाई ने पौना ही, मैं तेन दस जल्दी कर ला, गाहका का काम है। उस्ताद जी हुण करन ते दियां की हो गया? ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਇਹ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰੀਗਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਈ, ਹੈਲੋ ਇਹਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਇਹਦਾ। उस्ताद जी प्लग में कढ़िया जे ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। प्लग में दिखा दे, फूक मार प्लग दे। खातून ये कौन बोल रहा है? आप इस शख्स के साथ झगड़ा करने की बजाय कंज्यूमर अदालत से रुजू क्यों नहीं करती? है तो आप ठीक ही रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझे कंज्यूमर कोर्ट से ही रुजू करना चाहिए। केड़ी कोर्ट? कंज्यूमर केड़ी कोर्ट? आपको नहीं पता? कभी अखबार पढ़े तो आपको पता चले ना। आपके शोहर को कंज्यूमर कोर्ट का नहीं पता? अखबार नहीं पढ़ते क्या? बिल्कुल भी नहीं, इन्हें अखबार पढ़ना ही नहीं आता जी, मैं ही पढ़ के सुनाती हूँ इन्हें। ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਨਾ। मैं कोर्ट में जाऊंगी, वहां जाके ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ होगा फैसला। यही तो आप लोगों की नाकामी है। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾ ਪਵੇਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हमारे साथ तुमने जुल्म किया है। लो जी, जनरेटर चले ना चले, बंदा चल गया। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। ਇਹਨੂੰ ਘਸੀਟੇਂਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੇ ਖੋਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਂਗੇ? एक ते तेरा खावा दे, बाकी किथों ले आएंगे? अच्छा खोतिया ने ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तुम्हारा तो बाप भी जनरेटर देगा मुझे। जा बीबी जा, जिथे मर्जी जा, नहीं देता मैं जनरेटर, जेडी मर्जी कोर्ट के जारी चली जा। अच्छा जनरेटर वाला थोड़ा थता भी और आज दुकान पे आने लगा, भाभी दी शर्ट पाया। जनरेटर तो तुम्हारा बाप भी देगा और मैं जनरेटर लेके रहूंगी। मैं कोर्ट जाऊंगी, कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगी मैं तो। कंज्यूमर कोर्ट बाप भी देगा, जा ले ला फिर जाकर मेरे बाप को। अदालत के बार बार तलब करने पर भी हर धर्म दुकानदार पेश न हुआ। चुनाचे अदालत ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए उसे न सिर्फ जनरेटर की पूरी कीमत अदा करने का हुक्म सादिर किया, बल्कि 50,000 जुर्माना भी कर दिया। अब ये बदनसीब अपनी किस्मत को रोता और बहुत पछताता है। उस्ताद जी हुण क्यों रोन डए हो तुसी? पहले ख्याल करना सी। चुप करो उस्ताद जी, की हो गया जे? मैं तुहानू पहले कहना सी मतलब जनरेटर टाइम ना पहुंचाओ। तौबा, रोंदा किड्डा बुरा लग रहा है, लगदा हाथी पंचर होया है। चल चुप कर, मेरा उस्ताद नहीं चुप कर। वो बात सुनो मोटे,
मैं मना करता था ना तुम्हें कि चाइना चाइना ना किया करो। साई मेरी तो तनख्वाह दियो। अन्नी दिया 50,000 जुर्माना हो गया। तेन तनख्वाह दे मैं रोवे तनख्वाह लो। और तेन की टेंशन है 50,000 तेरे शगिर्द एक फंक्शन की गल है बस। फिर आराम ना बह अद्धे सिर वालिया। बात सुनो, तुम वे क्यों कहते हो? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੇਜ ਖੋਲਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। कुछ दिनों बाद तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक। कुछ दिनों बाद हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग। इस हवाले से हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब की सबसे मशहूर लोक दास्तान हीर रांझा के मरकजी किरदारों से। तो मिलते हैं हीर और रांझा से। क्या हाल है जनाब आपका? नी नैना वालड़िए नी मेरी वंजली दी तूए तान तूए मेरा दीन ईमान तो वार दिया जिंद जान नैना वालड़िए नी ये गल भुल्ली ना। अच्छा रांझे दे गाने तो लग रहे हैं दमा हुई है। रांझिया तेरा दौर फटे। हीरे इस वेले सानू पूरी दुनिया देख रही है। इसे वास्ते कह रही हैं शर्म कर टुट मरने। हीर बन हीर दा जनरेटर ना बन। की गल है? तेन मैंने जुगता नहीं करनी चाहिए। क्यों हीरे? मैं तेरी खातर सारा जग छड़ बैठी रांझिया। तू ते मेरी खातर किसी नू टगा नहीं छड्या हीरे। 18 साल तेरे बेले च फ्री काम कीता है। तेरिया मझां नवाइयां ने विच तैनू भी नवाया। ओए ना एडी मोहब्बत जता उन्हें भूख मारी तू जेलम तो लभना। बिजा दफा हो। असी सच्चे आशिक हां। अच्छा, उस फिल्म में एजाज बार बार ये कहता है असी सच्चे आशिक हां, असी सच्चे आशिक। और हालांकि इट वॉज अ सुपर हिट मूवी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मसूद परवेज साहब ने मोहर लगा दी थी कि पाकिस्तान में इससे अच्छी फिल्म ना उससे पहले बनी ना आज तक बन सकी। और इसी कहानी को 20 दफा रीडू किया है हर एक ने। इंडिया में भी इतनी अच्छी हीर रांझा नहीं बन सकी। सियासत दी गल होवे, इश्क दी गल होवे, तू लत जरूर हरावनी। हीर दी आवाज सुनी जे? एदी आवाज सुन के कई मझां भूतर गईयां ने। आखिरी बारी एक संडा भूतर गया, मेरे पीछे लग गया। वो क्यों? वो समझदा है मेरी आवाज है। रांझिया की गल है हीरे? एक बारी फिर दौर। अच्छा गौर करो रांझे दी वंजली रांझे नालों तगड़ी है। ले जाओ वे सारा जमाना ये गल्ला कर दे। मेरे रांझे नालों सोना कोई भी नहीं। अच्छा, सोना तो है, इस कदर कमजोर क्यों? यरकान हो गया था। एंकर बन भंड ना बन। असल जेदा जेड़ा चाचा कैदो नहीं सी उन्हें मैनू चरस ते लाता सी। रांझा जो तो ज्यादा जज्बाती होता है ना ते हीर नू अम्मी जी भी कहते। ये बकवास करने मूर्खा, साडा प्यार सच्चा है। सर उस दौर च अगर हीर हुंदी ना इन्हें कैदो दे उत्ते बह जाना सी। यही सी अन्ने ओदी लात एवें तो नहीं टुटी। हीरे मैं तेरी खातर कन पड़वाए सन। रांझिया जिड्डी तेरी सेहत है तू अपनी वंजली पड़वा पैनी। रांझना की गल है हीरे? वादा कर तू मैंने छड़ेगा तो नहीं। मैनू तो लगदा तू मैनू नहीं छड़ेगी। यार इसका क्या मतलब है? मैं जदों नसन लगदा मेरे पैर ते पैर रख देंदी है। तुमने कभी बिल्ली चूहे को देखा है? जी। कि चूहा भागने लगता है तो बड़े आराम से उस पे दुम पे पंजा रख लेती है। आ जाओ वापस वापस वापस। उससे खेलती है, पहले खाने से पहले खेलती है। ये भी खेल रही है। रांझा आजकल बड़ा परेशान है। वो क्यों? वो हीर हस्ते को बॉक्सर लाभ रहे। की बकवास कर रहे मूर्खा, साडा प्यार सच्चा है। सर ये वारिस शाह के कैरेक्टर है। ये तो हमारे कैरेक्टर्स हैं। वारिस शाह तो जो यहाँ की इस इलाके की दुआबे की जो हीर और रांझा थे उनके बारे में उसने, लेकिन ये असल कहानी ये दामोदर ने लिखी थी। दामोदर बहुत पहले, ये लोधी खानदान की हुकूमत थी यहाँ पर, 15वीं सदी का मिड था। और ये कहते हैं कि दामोदर दास अरोड़ा
खुद चश्मदीद गवाह था इस वाक़े का। वारिस शाह के बारे में तो कहते हैं ना कि उसकी चश्मे तसव्वुर ने उसकी एडेप्टेशन है, और भाग भरी थी वो खातून जिसमें उसको हीर नजर आई, उसकी इंस्पिरेशन थी वो, उसका एक्चुअली इश्क कहा जाता है। दामोदर ने कहानी अच्छी लिखी, लेकिन जो पोएट्री, जो विजडम की बातें वारिस शाह ने कर दी हैं, वारिस शाह तो बिलाशुबा शेक्सपियर से 2 हाथ आगे है, कम नहीं। वाह सर, वारिस शाह साहब की और फिल्म की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। एडेप्टेशन थी, मोस्टली कैरेक्टर्स भी वही थे, बैकड्रॉप भी वही था, चंद चीजें वो तब्दील है, वो नहीं है। मसलन किताब में जिस तरह से मरती है हीर और रांझा, वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिल्म में ये बेहोश हो जाती है और इसको पानी पिलाने हीर को कैदो एक गिलास में जहर डालता है और घड़े से पानी डालकर वो देता है, वो पीती है और मर जाती है। देखती है, कहती है कि मेरे अंदर सब कुछ कट गया है, इसके अंदर कोई चीज थी, कैदो ने डाली। और फिर रांझे के साथ एक्चुअली इसको कैदो ही देता है, लेकिन जहर वाला लड्डू देता है, वो लड्डू खाने से मरती है। ए हीर सर, हाँ जी, ए हीर ते 5000 लड्डू खा गई सर। अच्छा, ये नहीं मरी, बनाने वाला मर गया। अज तिकर मैं लड्डूआं दे पैसे ला रहे हैं जी। रांझना की गल है हीरे? याद कर जदों बागा च जांदे सी, हाँ मैं पींगा पांदी सी। हाय हैं? तू पींग दी सवारी नहीं। रांझना की गल है हीरे? किते ऐ रांझा हुंदा ना, हाय मैनू वो दंदियां वड्डणियां सी, मैनू बड़ी खेजे दित्ती। फिर रांझना की गल है हीरे? याद कर तेन मैं जदों ओ याद कर, मैं कोमे च याद कर। हीरे आज फिर चूरी कुट के ले आई है। मैं ते रोज 2 किलो चूरी लियानी है अपने ਲਈ। रांझिया की गल है? इस वंजली दे नाल एदा कुछ नहीं बनना, एदे से बड़ा बादशाह बुझा। सर, इसका बाप तो बड़ा फजूल शख्स था, कैदो के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका बाप वाकई फजूल नहीं था, अहमक था। लेकिन कैदो ठीक है, उसने एक कॉज के लिए उसने किया, लेकिन उसने कानून अपने हाथ में लिया, उसने जुल्म के पहाड़ ढाए। मैं उसे कभी अच्छा इंसान नहीं कहूंगा। वो एक पॉजिटिव चीज नेगेटिव अंदाज से कर रहा था। जैसे कहते ना कि बुराई के वतन से अच्छाई पैदा हो ही नहीं सकती, कैदो उसकी बेहतरीन मिसाल है। कैदो अच्छाई करना चाह रहा था, उसने जो रोड मैप इख्तियार किया वो नेगेटिव था। तो इसलिए मुर्रिख ने ये कह रहे जी पंजाब का बेटा था, बड़ा गैरतमंद था। गैरत ये नहीं होती कि बेटियों को फायर मार के मार दें, गैरत ये नहीं होती कि आप बेटियों को संसार कर दें। गैरत होती है आप अच्छी तरबियत करें। उस वक्त तुम मर गए थे जब वो तुम्हारे गांव में आया था, तुम्हें पता नहीं चला। 24 घंटे भंग पीने की बजाय कुछ सेंसिबल काम करते, तुम्हें पता चलता। जिस तरह हमारे हुक्मरान है, ये इक्तदार के नशे में धुत, कुछ भंग के नशे में, कुछ इक्तदार के नशे में, कुछ हमाकत के नशे में धुत पड़े होते हैं। आंखें उस वक्त खुलती हैं जब पानी सर से गुजर चुका होता है। रांझना हीरे चल किसी पास से निकल चलिए। मैं भी तेन यही कहना, भाई सानू मारेगा। रांझना ये दुनिया साडे खिलाफ, साडा प्यार सच्चा है। तेन होर कोई गल नहीं, या तो तेन फोड़ा निकले आउंदे जाने, तेरा खाना खराब हो, प्लेट की दर्द उठे, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। Hezrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता, और आज हम डिस्कस करेंगे इटली का मशहूर शहर वेनिस। वीनस है? और वीनस नहीं, वेनिस। और वीनस सिनेमा उकाड़ेगा है। लाहौर में भी है वीनस सिनेमा। अच्छा जी। वीनस एक और लफ्ज है। वीनस का मतलब है जोहरा, सैयारा है एक, बहुत चमकता दमकता। वाह। अच्छा जी, ये लफ्ज है वेनिस और निकला है लातीनी जुबान के लफ्ज वेनिशियस से। समुंदर का नीलगू रंग जो होता है उसे वेनिशियस कहते हैं, और वेनिस इसी से निकला है। अगों हूं हां भी करी देंदी, मैं तेन इंजेक्शन लवाउण नहीं ले आया। ये शहर 118 जजायर पर मुश्तमिल है, और इस पर तमाम ट्रांसपोर्ट कश्तियों के जरिए होती है। देखिए आपने, लंबी लंबी कश्तियां होती, कनूज की शक्ल की, सलीम के मुंह जैसे। उनको गोंडोलास कहते हैं। गोंडोला क्या कहते हैं जी? गोंडोला हैं जी?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਕਿਸ਼ਤੀ किश्ती ठीक है, कश्ती गलत है, किश्ती दुरुस्त है। अच्छा जी, यहां पर तिजारत भी इन्हीं किश्तियों के जरिए होती है, हत्ता के सब्जी फरोश और छोटी मोटी ये जो खांचा फरोश होते हैं वो भी किश्तियों पे गोंडोलास पे ही फिरते हैं। बड़ी मशहूर फिल्में बन चुकी हैं यहां पर। इंडियन फिल्म द ग्रेट गैम्बलर वो यहां बनी। बड़ी मशहूर फिल्म एंजेलिना जोली और जॉनी डेप की द टूरिस्ट। वाह वाह। फिर एक मशहूर क्राइम बेस्ड फिल्म थी द इटालियन जॉब, वाह। डकैती है, वो भी इसी शहर में। फिर जेम्स बॉन्ड की कई फिल्मों में वेनिस दिखाया। मेरा ख्याल है कैसीनो रॉयल में भी दिखाया है ये। ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੌਂਦਾ ਉੱਤੇ। इसकी 4 लाख आबादी है और ये सब इसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुके हैं और बड़े खुश हैं उससे। इनके मकान भी कश्तियों मकान कश्तियों के ऊपर नहीं है, जजायर के ऊपर हैं, जजीरे हैं छोटे छोटे। कश्तियों के ऊपर मार्केट्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्पेंसरियां हैं। यानी सौदा लेने तो मार्केट टूर पे ही है। इसी पैटर्न के स्ट्रक्चर्स दीगर बहुत से शहरों में भी हैं। मैंने बेल्जियम में खुद विजिट कर रखा और फिर वेस्ट इंडीज में भी है, थाईलैंड में भी है, दुबई में। एक ये मैन मेड है सारे, ये नेचुरल है। बड़ा पैसा बर्बाद किया है तुसी दुनिया फिरने से। अच्छा जनाब, चूंकि ये तिजारती मरकज है, बंदरगाह है, इसलिए आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा इसका ये मरकज है। ड्रामा भी किश्तियां 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। किश्तियों में भी होता होगा। ਇਹ ਆੜੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਡੋਲੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਡੋਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੁੱਬਕੀ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜ਼ੀਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ੀਰਾ। जजीरा जजीरा और चीज है, सब कुछ जजीरे के ऊपर है। ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ? इसलिए कि हमकानाबाद में हंसी आती है। ਅੱਗੋਂ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा जी, यहाँ के मशाहीर में वैसे तो बेशुमार लोग हैं, लेकिन आप एक ही से वाकिफ होंगे और वो है मार्को पोलो। बड़ा मशहूर सयाह। ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। जी जनाब, ये सिल्क रूट जो आपका बड़ा मशहूर। ਬਲਕਿ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। बल्कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋं ही आया। ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका, हुंजा का इलाका जो, वाह। ये सिल्क रूट है जो चाइना से हुंजा नगर, कराकरम हाईवे, ये बड़ा लाजवाब रूट है। और उसके ऊपर एक मशहूर जानवर भेड़ है जो मार्को पोलो शीप के नाम से मशहूर है, जिसके ऊपर बड़ी महंगी ट्रॉफी है। उसको मारने पे सर अगर आपने शिकार करना है तो यू हैव टू पे फॉर द ट्रॉफी। ਸਰ ਐਤਕੀ ਤੇ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਸ਼ੀਪ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? 1 करोड़ रुपए ट्रॉफी। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ बतख। यार आप क्यों उसके खिलाफ हो गए? एक शरीफ नफीस आदमी है। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ 8, 10, 302 ਦੇ ਪਰਚੇ। मैं इन्हें मना करता हूं कि ना किया करें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ? ये तुम्हारा ख्याल ही है कि नवाज शरीफ हट जाता है। वो किसी के कहने पे नहीं हटता, वो सिर्फ किसी के कुछ करने से हटता है। ये सियासी स्टेटमेंट दे रहा है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। पला से वीनस गए सा। वीनस, अभी तक तुम वीनस बैठी हो, ये वेनस है, वेनस। ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ, क्यों? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰੋ। क्यों? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, यहाँ के 2-3 खाबे सुन लें। एक है बचाला मांटिकाटा। बोलो क्या बोलो? बचाला काटी काका डाका। इसको बचाला भी कहते हैं और बकाला भी कहते हैं। अरबी में बकलावा जो है उसका इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा जी। बकाला, बकलावा और बसाला भी डबल सी है, लेकिन इटालियन डबल सी को चे की आवाज देते हैं, जैसे गुची है। जी। बचाला, बेचाला ये डिश है सर कोई? जी, ये खुश्क मछली होती है, उसे जैतून और अदरक में बहुत लाजवाब ग्रेवी की शक्ल देकर पकाया जाता है और उसके ऊपर फिर गार्निश किया जाता है ऑलिव्स को। हाय हाय हाय। और अगर आप चाहें तो एक दबीज तह
उस पर पनीर की डाल सकते हाय हाय, हुण देखो मच्छी दे लेंटर पा रहे ने। ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? आप किसी भी इटालियन फूड फेस्टिवल पे चले जाएं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हर जगह पर ਇਟਾਲੀਅਨ ਜੁੱਤੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਮੱਛੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। इटालियन तो बड़ी बड़ी चीजें, इटालियन गन ब्रेटा। ਇਹ ਤੂੰ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਹੈ? मच्छी की गोली। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੋਲੀ। इसका नाम आपने क्या बताया था? बचाला मेंटेकाटा। ਇਹ ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਰਗਾ ਨਾਮ। अच्छा, फिर एक डिश है रीसी ई बीसी। रीसी ई बीसी ये राइस की डिश है। रीसी ईबीसी। हाँ। और पहला नाम भूल गया। ये रीसी पता क्या है? ये मटर वाले चावल हैं, ब्राउन प्याज में बहुत शानदार तरीके से बने हुए। इसके अंदर पिस्ताशियोज भी डलते हैं, कैशू नट्स भी डलते हैं, और शौकीन लोग रोस्टेड मीट के साथ खाते हैं। खांदे कितने बैग इसको रीसी बीसी भी कहते हैं, रीसी अबीसी भी कहते हैं, रीसी ईबीसी भी। असि सीधा जाके कहना पान मटरां वाले चौल है नहीं, मटर वाले चौल मांगोगे तो फिर रोस्टेड मीट कहां से लाओगे, फिर पनीर कहां से लोगे, फिर शानदार कैशू नट्स कहां से लोगे, पिस्ताशियोज कहां से लोगे? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। अच्छा डॉक्टर साहब है वेनिस का कोई परहेज परूज है वे? इसका परहेज यह है कि वहां पर उठाई गिरों, उचक्कों, जेब तराशों और बैग स्नैचर से मोहतात रहना चाहिए। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ये जितने शहर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, हाय हाय, वहां पर ये वारदातें, ये सिलसिले होते हैं, और 30 लाख टूरिस्ट, 3 मिलियन टूरिस्ट हर साल आता है यहाँ। फिर ये जो वेनेशियंस होते हैं, ये जो वेनिस के रहने वाले, ये गुस्से के बड़े डाडे होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। क्यों जी, वो भी एंकर होंगे ने? नहीं, वो बस किसी वजह से गुस्से में आते हैं, और ख्याल रखना चाहिए जो मकामी है। नहीं जो उन्होंने गुस्सा आवे ना पानी से छाल मार दो। अच्छा जी, उत्थे मंगण वाले भी कश्तियां च फिरते ने ते हॉस्पिटल भी कश्तियां च, यकीन डॉक्टर भी, जेड़ा मरीज ठीक ना हो पानी सुट देंगे। हज़रात, हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हज़रात, हमारा सेगमेंट है मुखबरनामा, और हम चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। जी जनाब। शूम शड़क पड़क पड़क पड़क। तेनू 1000 बारी रोकिया भी चलदी पड़क च हाथ नहीं देना। आज बाबा ऐसी मुखबरी लेके आया बच्चा, हैरान परेशान कर देगा दुनिया नु बच्चा। अच्छा फट्टा बड़ा कमजोर है, ऐसा बोलो। और बात सुनो, अगर ये फट्टा गिर गया ना, पूरा सेट धड़ाम से नीचे आन गिरेगा, और चोट तुम्हारी पड़क पे लगनी है। बच्चा गौर नाल मुखबरी लेनी है। थोड़े चंद वजीर आहिस्ता आहिस्ता अपना माल मताम लेके दुबई शिफ्ट हो रहे हैं बच्चा। ओए। और कुछ वजीर ते विचों ऐसे है मेरा बच्चा कि जिन्होंने अपने बच्चों नूं उत्थे स्कूलों च दाखले भी ले दिते है। वाह। और कुछ वजीर ते ऐसे है जेड़े अपने दफ्तरी कागजात इधर उधर कर रहे हैं बच्चा। अच्छा जी, ये बताइए कि ये वज़राए कराम हैं कहाँ कहाँ के? ए बाबा नहीं दस सकता बच्चा। क्यों, बाबे को क्या होता है? नहीं, बाबे ने घर भी जाना होता कि बाबा चित्र खा बैठे। सिर्फ ये बता दो कि ये किस सूबे के हैं? ए सेंटर पंजाब दे ने भाई जी, मुझसे पूछो ना। बाबे ने मना किया कि पंजाब नहीं कहना, तो तुमने क्या किया? मैं सेंटर पंजाब दसिया। ये उस तो भी वध हुंदा अन्नी दिया हुण ते उन्हां दे घर पड़ाता इन्हां नूं। अच्छा जी, ये मुखबरी आई किधर से है, ये तो बताएं। ये सारी मुखबरियां बाबे दी बीवी दसदी है। ओदा जरा हल्का है, बाप बहुत वसी है। जदों बाबे दी बिस्ती हो रही होवे अगों गल करी दी है। बाबे दुआ च असर हुंदा या बद दुआ, साडे हालात ना बदल जांदे। अच्छा बैठा वे लगदा पराली च खोता बने है मगर। शूम चड़क पड़क पड़क पड़क। अच्छा, आज वैसे मुझे बता ही दो कि ये तुम्हारी सिग्नेचर ट्यून ये क्या है? ए मेरे पीरो मुर्शद दी अता करदा ट्यून है बच्चा। शूम चड़क। कर होना सी, डरना भी है। पड़क पड़क पड़क। छोटे बाबे ने ना बड़ा कटे गर्मे और या हसला या बच्चा मुखबरियां ले ला।
बाबे को लेना टाइम नहीं, और जगह भी जाना बाबे ने। किसी और चैनल पे जाके मुखबरियां देते हो? बाबा जंजा मुखबरियां दिंदा है, चैनल वाले तेरे मुंह ही नहीं लांदे। ज्यादातर मुखबरियां लाड़े दे प्यो नूं। एक अहम मुखबरी दे रहा हूं बच्चा। जी जनाब, गो अहेड। NHA ने एक बहुत बड़ा ठेका तुर्की कंपनी को देने का फैसला कर लिया है, जॉइंट वेंचर के तहत। मैंने पता अंग्रेजी आउंदी दी बाबा ते इत्थे खज्जल हुंदा। ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਜਾ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। वाह वाह वाह, प्रोफेसर साहब हैं आप। जुगतां घट करो, मतलब दी गल करो। ये जॉइंट वेंचर ते है, लेकिन किसी C क्लास कंपनी ने दिता है। ओए, हालांकि कायदे कानून के मुताबिक जॉइंट वेंचर किसी फॉरेन कंपनी के साथ सिर्फ A क्लास पाकिस्तानी कंपनी कर सकती है। हाँ जी। अच्छा, ये C क्लास कंपनी पंजाब की है? ये जनाब पंजाब दी ओही कंपनी है, किसी वड्डे बंदे दे पुत्र दी है। ओए, हाँ जी। अब तुम बाबे से बचो। बाबा जी पंजाब दी नहीं, ईस्ट पंजाब दी गल कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि ये ठेका NHA के किस अफसर ने दिया? कोई गल्ला कोड़ो भी पा लिया कर बच्चा, यार हर गल बाबे तेरा बैठा रहा कर। नहीं नहीं, बताओ बताओ किसने दिया? ओदी चेयरमैन ने दिता, विच रौला कड्डो। ओ परा दफा हो जा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। वो लगता मलंग ने सप खा लिया मान। अच्छा जी, आप बता रहे थे चेयरमैन NHA ने ठेका दिया था। अजय मजीद कोई कसर है? अच्छा, फिर हुआ क्या? बाबा जी आप इधर देखिए, अब हमें पता चल चुका है ठेका जाहिर है चेयरमैन से नीचे तो कोई दे ही नहीं सकता। और बच्चा ये ठेका एडमन ने कैंसिल कर दिता। वाह। डायरेक्टर एडमन दा ट्रांसफर बलोचिस्तान हो गया बच्चा। वाह। और वो आके चेयरमैन दे कमरे दे विच बह गया। क्यों? उन्हें कहा जिथों मेरी ट्रांसफर दे आर्डर आए ने, उस तो वड्डी जगह तो मेरे स्टे दे आर्डर आने वाले ने। वाह 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 वाह। बाबा आम मुखबरी नहीं देगा। तो फिर हुआ क्या? होना की सी बच्चा, अद्धे घंटे दे अंदर अंदर ऑर्डर कैंसल। ओए, ते चेयरमैन बेचारा आजकल सिर खुरकदा। और है सिर बाबे ने एहतियातन नहीं किया है। और की खुरकदा, और की खुरकदा, की खुरकदा, और की खुरकदा, और बंद करो, की खुरकदा, की खुरकदा, और बाबा जी को पानी का पीपा दम करके दो, इन्हों नवाना सी। नामाकूलों का भी कोई संजीदा बात भी कर लिया करो यार। बाबा जी आए ने की कर, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम इधर लोग बैठ के काम ये कर रहे बच्चा हो। मैंने पढ़िया लिखा लगता। बहुत पढ़े है जी बाबा जी, पढ़ पढ़ के पागल हो गए। गल सुन, बाबा आया, तू तवीज न ले, बाबे को साबुन ले ले। बाबा जी प्लीज अगली मुखबरी। शूम शड़क पड़क पड़क पड़क। चश्मा बैराज का एक टेंडर 7 अरब रुपए में दिया गया बच्चा। अच्छा। फिर इसी अमल को रोककर 9 अरब रुपया किया गया बच्चा, और फिर उसी टेंडर को 11 अरब रुपए में दिया गया। ओए होए होए। हजे असल ओए होए तेरी निकलनी है बच्चा। फिर यही टेंडर बच्चा एक और पार्टी को 16 अरब रुपए में दिया गया, लेकिन शर्त यह थी बच्चा कि ये काम 7 अरब में ही मुकम्मल होगा, और बाकी सारा किकबैक 9 अरब रुपया एक अहम शख्सियत को पहुंचाना होगा। अच्छा जी, अब असल बात यह है कि वो अहम शख्सियत कौन है जिसे 9 अरब रुपए पहुंचाने थे? जी चेला साहब प्लीज मेहरबानी कीजिए। मैं एडा भी काका नहीं, मैंने नहीं पता। अच्छा जी, चश्मा का जो इंचार्ज महकमा है वो तो वापडा है, वो तो वफाकी वुज़रा हो सकते हैं, लेकिन वो कौन सी शख्सियत है जिस तक कुछ ज्यादा है जी। दुबई का कुछ शहजादा? तुसी दुबई समझो, ये दुबई तो घट है। ओए, पाकिस्तान का शहजादा कोई? अच्छा कोई हिंट ही दे दो यार थोड़ी सी। मैं कितने सदी तानू, वो मेरा तो आप गवांढी है। यानी हमसाया है तुम्हारा? हाँ जी। लाहौर की बात कर रहे हो चनियोट की? सारा चनियोट की गल कर रहे हैं ना बच्चा। हुण गल याद रखी, बाबा तो जलील होएगा, तू हवाच तहलील होएगा। बाबा जी अल्लाह की कसम है, चनियोट वाली गल तो मेरे अब्बे ने नहीं पता। तो भी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। तमीज करो। अच्छा, मैं तो बहुत छोटी सी थी जब से मैंने रेशम की पहली फिल्म देखी थी। तुम ठीक कह रहे हो मेरा, जो तुम उम्र अपनी बताती हो उसके मुताबिक जो तुम्हारी पहली फिल्म आई थी वो तुम्हारे पैदा होने से पहले आई थी। लब लब थकिया सन कुछ नहीं लभ्या, लब लब थकिया सन कुछ नहीं लभ्या,
تو چاڑا پائیاں رے ہڈیاں پکائیاں رے ہڈیاں پکائیاں رے ادھروں گوشت نہیں آنا اسی ڈانسر ہو جانا نکل دو فٹافٹ نکل دو چھاپا بادشاہ سلامت میاں صاحب کہہ رہے ہیں سارے تم ہٹ جاؤ تسی پاؤں ایتھے رہنا. اچھا یہ بھی میاں صاحب نے کیا